Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Now let's begin the next chapter, that is about the blood circulatory system, and the lecture number 2, which is about human heart. Now every circulatory system comprises of three parts. One is the blood, then the pumping organ, and third one is the blood vessels. एक सर्कुलेटिंग एजेंट दैट इज ब्लड, एक पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट, एंड द ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिनको हम लेटर ऑन लेक्चर्स में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट क्या है? इट्स एक्चुअली अ मस्कुलर ऑर्गन, and this muscular organ is responsible for pumping blood through the blood vessels, and the phenomena is the repeated contraction. कि एक ये ऐसा organ है that is made up of muscles, और मसल्स का काम क्या होता है? विच ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट दैट इज कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन. और उस कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से हार्ट क्या करता है? हार्ट आइदर रिसीव ब्लड और हार्ट आइदर पंप ब्लड. अच्छा जी, द टर्म कार्डियक मीन्स दैट इज रिलेटेड टू हार्ट. जब भी कार्डियक का वर्ड आएगा आपके माइंड में क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज अबाउट द हार्ट. द बल्क ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. ठीक है. अच्छा जी, इसका साइज कितना होता है? योर हार्ट साइज इज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट. फिस्ट मीन्स वन मुट्ठी, सो इट्स साइज इज अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट. अब देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है. इन ह्यूमन बॉडी हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी, दैट इज द thorax अंडर द breast bone. ठीक है. As you have seen in the diagram, that is heart is present just in the middle, just below the chest cavity and just under the breastbone, and heart is felt on the left side. Why? Because of the left chamber that is present on the left side, because it is the largest chamber, because it is the strongest chamber. So इस ventricle की वजह से हमें हार्ट लेफ्ट साइड पर फील होता है, बिकॉज सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है. सो उसमें कोई भी मूवमेंट है कि दैट इट रिसीव ब्लड और इट कॉन्ट्रैक्ट ब्लड, देन यू कैन फील. अच्छा जी, हार्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द हार्ट एनक्लोज्ड. सो हार्ट इज एनक्लोज इन अ सैक नोन एज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम एक सैक है. पेरिकार्डियम इज अ पाउच. So it's a very very thin walled fine pouch, and this pouch is called pericardium. And between the pericardium and the heart muscles there is a fluid which is called pericardial fluid. इस pericardium और muscles के दरमियान क्या है? Pericardial fluid, which reduces the friction, because heart को beat करना है throughout your life. दिल को धड़कना है throughout the life. So whenever the heart beat, it reduces friction between pericardium and heart during heart contraction. So heart contraction में जितनी भी friction produce हो रही है, heat produce हो रही है, it is controlled or it is reduced by pericardial fluid. So pericardium का बहुत, so pericardium is a very very tough um, sac. अच्छा जी, हार्ट के चेम्बर्स देख लेते हैं. देयर आर द 4 चैम्बर्स लाइक अदर animals hearts, like birds and other mammals. So upper are the thin walled, that is called the atria, and the lower are called the thick walled, that are called the ventricle. Heart have two sides, right side and left side. Right side is meant for the impure blood and left side is meant for the pure blood. ठीक है. Let's move on. So right atrium and right ventricle. अभी मैंने आपको बताया right atrium हो या right ventricle हो, as you have seen in the diagram with the blue color. So blue color indicate कर रहा है some impurities. So right atrium and right ventricle, they receives deoxygenated blood from the body. पूरी body से तक सारा impure blood receive करता है right atrium. और कौन से हैं valves, कौन से हैं? That is the valve is the tricuspid and semilunar valves. ठीक है. ये right atrium receive करता है blood. This right atrium receive blood through
सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कैवा। सुपीरियर वीना कैवा आता है हमारे अपर बॉडी पार्ट, हेड एंड नेक रीजन, shoulders, और inferior vena cava from the lower body front starting from the toe to the upper thorax। यहाँ तक कहाँ से ब्लड, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में ड्रेन आउट होते हैं। सो अच्छा जी, वेन एवर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट इट पासिस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी आप देखें ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। सो यहाँ पे कौन सा वेल्व है, दैट इज द ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड क्यों कहा, बिकॉज इट हैज 3 फ्लैप्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व। अच्छा जी, व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को कहाँ लेके जाता है, टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। और यहाँ से क्या ओरिजिनेट होता है, पल्मोनरी ट्रंक। ये याद रखें, जो वेसल्स हार्ट से निकल रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज, जो हार्ट में एंटर हो रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं वेन्स। सो वेन्स, दैट इज सुपीरियर वीना कैवा एंड इंफीरियर वीना कैवा, यहाँ से ब्लड ड्रेन होता है इनटू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। और कौन से वाल्व्स ओपन होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व्स। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ तक पहुंचना है, लंग्स, बिकॉज इम्प्योर मीन्स इट हैज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम है तो हम उसे इम्प्योर कहेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा है दैट इज द प्योर। सो पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर जाएगी लंग्स तक, और लंग्स से ये प्योरीफाई होकर ब्लड दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखें, बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया देयर आर द सम वेल्व्स, but there are some valves which are present between all the vessels and heart chambers। अच्छा, जैसे ये हार्ट है, यहाँ ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में सुपीरियर वीना कैवा, इंफीरियर वीना कैवा ओपन हो रहे हैं, तो वेल्स कौन से हैं, सेमील्यूनर वेल्स। अब इस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो वेल्व कौन से हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व। अब यहाँ से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो सेमील्यूनर वेल्व्स, फिर वहां से दोबारा से ये हार्ट के अंदर आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन, तो कौन से वेल्व है, सेमील्यूनर वेल्व्स। इसी तरह इस लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ पर है बाइकस्पिड वेल्व। एंड व्हाई दिस बाइकस्पिड वेल्व, दिस वेल्व हैव द 2 फ्लैप्स जिसे हम बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं। So at the base of pulmonary trunk, pulmonary semilunar valve is present, और इन वेल्व्स का काम क्या होता है, ये वन वे फ्लो को मेक श्योर करते हैं कि एक दफा ये यहाँ से ब्लड गुजर जाए तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो, चाहे बाइकस्पिड वेल्व है, चाहे ट्राइकस्पिड वेल्व है, चाहे सेमील्यूनर वेल्व्स हैं, दे ऑल वेल्व्स आर मेंट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब ये एक दफा वंस ब्लड हार्ट से या उस चैम्बर से निकल गया, इट विल नेवर बी कम बैक टू द हार्ट चैम्बर, और ये इट्स अगेन अ वेरी strong blessing of God। Now let's say left ventricle or left atrium। Left ventricle or left atrium, as you have seen in the diagram, कि they are meant for receiving the blood, that is pure blood। अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आ रहा है वो कहाँ पे ड्रेन होता है, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे होता है, इनटू द देन लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा राइज होता है, एंड दिस एओर्टा देन पंप्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये दिस इज द ट्राइकस्पिड वेल्व जिसके 3 फ्लैप्स हैं, और यहाँ पे है बाइकस्पिड वेल्व व्हिच हैव द 2 फ्लैप्स। So between left atrium and left ventricle there is a bicuspid valve, there is a right atrium and right ventricle, there is a tricuspid valve। So the opening between left atrium and left ventricle is guarded by the valve known as bicuspid valve because it has 2 flaps। When the ventricle contract, it pumps the oxygenated blood in aorta। aorta कहते हैं largest artery को aorta। जो हार्ट से लार्जेस्ट आर्टरी ओरिजिनेट हो रही होती है, that carries pure blood is the aorta, which carries blood to all parts of the body except lung, because
because this lungs are lungs receive blood from the pulmonary artery. Bicuspid valve prevent the backflow of blood from the left ventricle to the left atrium. So at the base of aorta, aortic semilunar valve is present, which prevents the backflow of blood from aorta to लेफ्ट वेंट्रिकल। आप देख रहे हैं जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड इस एओर्टा में एंटर होता है और जैसे ही एओर्टा में एंटर हो जाएगा यहाँ पे वेल्व्स हैं वो फौरन बंद हो जाएंगे बिकॉज फ्रॉम दिस एओर्टा द ब्लड इज देन पम्प टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि वाई वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड, क्यों इतनी थिक वॉल्ड है वेंट्रिकल्स की वॉल्स? बिकॉज वेंट्रिकल्स ने हार्ट को ब्लड को पंप करना होता है आउट टू द आउट ऑफ द हार्ट, so that is why the left ventricle is the thick walled। आपको पता है इसकी ventricles की wall that is half inch thick होती है because they have enough force to push blood to the body। So this indicates that the structure of parts of the heart are adapted to their functions। ठीक है, that is the reason कि ventricles are thick walled because ventricles की contraction से blood पूरी body में ट्रांसफर होना है। Now this is the overview of the human heart। Human heart में क्या आप देख रहे होंगे, that is right atrium, then the right ventricle, then the left atrium, then the left ventricle, this is the aorta, this is pulmonary artery, this is the pulmonary vein। अब आप देखें यहाँ से सुपीरियर वेना कैवा एंड inferior वेना कैवा, this is inferior, this is superior वेना कैवा, they both open into the right atrium। राइट एट्रियम और इसके दरमियान कौन सा वेल्व है, सेमी ल्यूनर। ल्यूनर का वर्ड यूज होता है ना मून के लिए, तो हाफ मून की शेप का ये वेल्व है। देन द राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वेल्व, फिर यहाँ से फिर सेमी ल्यूनर वेल्व और ये कौन सा है जी, पल्मनरी आर्टरी। ये पल्मनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, टू द लंग्स। लंग्स से फिर पल्मनरी वेन से ब्लड कहाँ पे आएगा, इनटू द लेफ्ट एट्रियम और इसके अगेन वेल्व्स कौन से हैं, सेमिल्यूनर वेल्व। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो वेल्व कौन से हैं, दैट इज द बाइकस्पिड, इसके टू फ्लैप्स हैं और फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल दे आर द इनटू द एओर्टिक into the aorta and from the aorta to each and every part of the body। This is the whole mechanism of circulation of blood in human heart। Hope you understand well। If you have any question, do ask me। I will be available anytime for your questions। But please do understand well, do study well, so don't waste your time, and because time is your asset। So if you have any question, please anytime you can ask me। I will try my level best to make you understand well whenever I have knowledge। Thank you very much for listening me। Allah Hafiz।